ये मेरी प्रार्थना है आप सबके लिए This is my prayer for each one of you. कि अगर कोई भी यहाँ पर आया है जिसकी जो वॉक है परमेश्वर के साथ, अगर आप गुनगुने पड़ गए, अगर आप ठंडे पड़ गए, तो आज आत्मा की वो धधकती हुई आग लेकर आप यहाँ से जा रहे If there is anyone here who has become lukewarm in their walk with the Lord, you're receiving that fire of the Lord today. हो। मैं आपको बता रहा हूँ, वे जो मसीह जो आग से धधकते हैं, दुष्ट आत्माएं, बुरी आदतें, ये सारी चीजें वो आग नाश कर देता है। I'm telling you, the believers that burn with the fire of the Holy Spirit, this fire destroys every evil thing against them. तो उस परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मैं केवल सेलिब्रेट करने नहीं, मैं अपने आप को डेडिकेट करने भी यहाँ पर आया हूँ। So tell the Lord and say, I have not just come here to celebrate, but I have come to dedicate my life to you. आज एक नया चैप्टर शुरू हुआ है आपके जीवन का। Today a new chapter has begun in your life. पुराना चैप्टर जैसा भी हो वो बीत चुका है। Whatever the old chapter was like, it is over. आज आप डिसाइड करो कि इस साल का चैप्टर आपका कैसा होगा। Today you decide what this new chapter will look like in this year. क्या आप एक जयवंत योद्धा की तरह जियोगे? Will you live like a warrior, a champion, victorious champion? परमेश्वर ने आपको अपनी आत्मा की तलवार दी है। God has given you the sword of His Spirit. परमेश्वर ने आपको वो कलम दी है जो आत्मा की है। एक ग्लोरियस, एक बेस्ट कहानी लिखो अपनी यीशु के नाम में। God has given you the pen of His Spirit so you can write the best and the most glorious story for your life. एक्सपेक्ट नए दरवाजे खुलने वाले हैं यीशु के नाम में। Expect new doors are about to open in Jesus' name. Amen. Amen. Acts 4:33, I'll read this. प्रेरितों के काम 4 उसका 33. And with great power the apostles gave witness to the resurrection of Lord Jesus, and great grace was upon them all. प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। बड़ा सामर्थ, ग्रेट पावर, बड़ा अनुग्रह, ग्रेट ग्रेस। Amen. Amen. इस साल आप ये बड़ा सामर्थ और बड़ा अनुग्रह चखने वाले हो यीशु के नाम में। This year you are going to taste this great power and great grace of God on your life. Amen. मगर इसके पीछे एक उद्देश्य है। But behind this there is a और purpose. उद्देश्य क्या है? What is that purpose? कि हम उसके जी उठने का, उसके पुनरुत्थान की गवाही देंगे इस साल। मैं बिलीव करता हूँ इतनी सारी आत्माएं इस साल हम बचाएंगे यीशु के नाम में। That we will be witnesses of His power, His resurrection, and I believe we are going to save many souls this year. अभी सबसे बढ़िया बात इसमें क्या है? उन्होंने यीशु मसीह की कहानी नहीं बताई। The best thing about this is they did not tell the story of Jesus. They are not giving a witness of a story character, वो एक कहानी के पात्र के बारे में नहीं बता रहे, of a historical Jesus. एक ऐतिहासिक यीशु के बारे में नहीं। They are witnessing about the resurrection of Lord Jesus Christ of Nazareth. वो गवाही दे रहे थे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान, मुर्दों में से जिंदा होने यानी अब जब आप प्रचार करोगे तो उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ प्रकट होगी और ऐसी गवाहियां आप देखोगे जो आपने आज तक नहीं देखी। That means when you will witness about Him now, you will see great power and you will see testimonies that like you have never seen before. Amen. मैं बिलीव करता हूँ यहाँ पर डिलीवरर्स बैठे हैं। I believe deliverers are sitting here in this place. आप मानते हो? अब हाथ दिखाओ मुझे अगर आप कहते हो आप छुड़ाने वाले हो। Show me your hand if you believe you are a deliverer. Amen. Say I am a deliverer. कहे मैं छुटकारा देने वाला हूँ। परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है God has anointed me कि मैं सुसमाचार का प्रचार करूं that I preach the gospel और जो बंधुआई में पड़े हुए हैं उनको मैं प्रचार करूं। and deliver those who are in bondage. Amen. Hallelujah.
और जो प्रोफेटिक इंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको पहले संडे को बताऊंगा, And I'll give you the prophetic instruction on first Sunday. मगर आज एक स्पेसिफिक वर्ड है जो मैं आपको देना चाहता हूँ इस साल के लिए। But today there is a specific word that I want to give you for this और year. मैं चाहता हूँ ये वचन आप अपने सामने रखना पूरे साल, And I want you to keep this word in front of you the entire year. क्योंकि ये हम सब के लिए ये वचन है। Because this word is for all of us. आमीन। Amen. मैं विश्वास करता हूँ ये वचन हमें उस कमिटमेंट में बनाए रखेगा। I believe this word will sustain us in that commitment. हमें पानी की तरह नहीं जीना है। We don't have to live like water. आप पानी को जब उड़ेलते हो कहीं पे, When you pour water somewhere, तो वो सबसे लीस्ट रेजिस्टेंस वो उधर ढलता जाता है। it goes towards the path of least resistance. नहीं, लाइफ विल नॉट हैपन टू यू, यू विल हैपन टू लाइफ। जिंदगी अपने आप नहीं होगी, पर आप उसको नियंत्रण में रखेंगे अपने। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, लाइफ विल नॉट हैपन टू यू, अरे मेरे साथ ऐसा हो गया, नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। Life will not happen to you, but God has given you authority over your life. आपको जय में चलने के लिए बुलाया गया है। You are called to live in victory. आमीन। सो जो वचन मैं आपको दे रहा हूँ, जो इस पूरे साल है, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, The word that I'm giving you today, which is for you and me, for all of us, is from 2 Timothy chapter 2. दूसरा तिमोथी दूसरे अध्याय से। And the word is a soldier, an athlete and a farmer. और वो वचन है एक सैनिक, एक खिलाड़ी और एक फार्मर, एक किसान। ओके? हाँ, फिर से मेरे पीछे बोलो। A soldier, an athlete, a farmer. एक सैनिक, एक खिलाड़ी और एक किसान। इसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। और मैं वचन से आपको दिखाता हूं कि पौलुस अपने आत्मिक पुत्र तिमोथी को क्या बता रहे हैं। This is why God has called us, and I want to show you from the word what Paul tells his spiritual son Timothy. ओके, हम लोग चलते हैं दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय। मैं 1 से 7 में पढ़ूंगा, ध्यान धर कर सुनिएगा, डिस्ट्रैक्ट मत होने दीजिए अपने आप को। Let's go to 2 Timothy. I'll read from 2 Timothy chapter 2. I'll read from 1 to 7. You therefore, my son, इसलिए हे मेरे पुत्र, be strong in the grace that is in Christ Jesus. तू उस अनुग्रह में जो यीशु मसीह में है बलवंत हो जा। Amen. यानी you have to become strong in the grace that is in Christ Jesus. तो जो अनुग्रह मसीह यीशु में है, आपको उसमें बलवंत होना है। And the things that you have heard from me among many witnesses, commit these to faithful men who will be able to teach others also. और जो बातें तूने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वास योग्य मनुष्यों को सौंप दे और उन्हें भी सिखाने के योग्य कर। अब ध्यान से सुनिए। You therefore must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. मसीह के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। पहली चीज जो पौलुस तिमोथी को बोल रहा है, अपने आत्मिक बेटे को, वो कह रहा है, पहली चीज, तिमोथी तू एक सैनिक की तरह, तुझे एक सोल्जर की तरह दुख उठाना है। The first thing he's telling his spiritual son is that you have to endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. और ये वो दुख उठाने की बात नहीं है, बीमारी, गरीबी, ये उस दुख उठाने की बात नहीं है। ये है जब आप सुसमाचार के लिए जीते हैं तो लोग आपके लिए बुरा भला बोलेंगे, लोग आपकी निंदा करेंगे, आपके अपने लोग आपके बारे में बुरी बुरी बातें फैलाएंगे। And this hardship is not sickness and poverty, but when you live for the gospel, when you preach the gospel, your own people will say bad things about you. They will spread rumors about you. So आपको ये समझना चाहिए कि आत्मिक जहां में आप सब लोग परमेश्वर की आर्मी में हो। So you all should know that in the spirit, you all are in the army of God. Amen. Amen. बोलो, मैं परमेश्वर की आर्मी में हूँ। Say, I am in the army of God. आप जानते हैं आप परमेश्वर की आर्मी में हैं? Do you know you're in the Lord's army? हाँ, यही फर्क है हमें। आप केवल भक्त नहीं हो, You're not just a devotee. आप उसकी आर्मी में सैनिक हो। You are a soldier in his army. Amen. No one engaged in warfare entangles himself with the affair of this life, that he may please him who enlisted him as a soldier. जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। Amen. अगर हम मसीह के हैं, If we belong to
Jesus और कोई आपके जीवन को देखता है, and someone looks at your life, हमारे जीवन में और एक व्यक्ति जो दुनिया में है अंतर होना जरूरी है। there has to be a difference in our life and the life of people who are in the world. अगर आप वही सुनते हैं जो दुनिया के लोग सुनते हैं, वही देखते हैं जो दुनिया के लोग देखते हैं, वैसे ही गालियां देते हैं, वैसे ही जोक मारते हैं, तो फिर कुछ गड़बड़ है। If you hear like the people of the world, if you speak like the people of the world, if you use cuss words, say things like them, then there is a problem. हम अलग किए हुए लोग हैं। We are people who are set apart. बोलो मैं अलग किया हुआ हूँ। Say, I am set apart. पवित्र का मतलब यही है, अलग किया हुआ। This is what holy means. It means to be set apart. हम उसके निज प्रजा हैं, हम उसकी पवित्र प्रजा हैं। We are His own people, His holy people. आमेन। यानी हम ये नहीं कह सकते मैं यीशु मसीह को मानता हूँ केवल, मगर भैया जीऊंगा तो मैं अपनी जैसे मन करेगा। नहीं, एक सोल्जर जो होता है, एक आर्मी में सैनिक जो होता है, वो अपनी मर्जी से नहीं जी सकता। So we can't say, yes, I believe in Jesus, but I live my life the way I want. A soldier cannot do that. आप एक सोल्जर हो You are a soldier. और इस बहुत ज़रूरी है कि हम जाने इस बात को कि हम कैसे जिएं। And it is very important that we know how we should live. आमेन। Amen. यहाँ पे Paul uses 3 vivid metaphors इस पूरे पैसेज में। Paul यहाँ पर 3 चित्रों का उदाहरण इस्तेमाल करते हैं। Soldier, सैनिक, an athlete, खिलाड़ी and a farmer. और एक किसान। And he does this to illustrate the key aspects of a Christian life. और मसीह जीवन को की जो मुख्य बातें हैं उसको दर्शाने के लिए वो ऐसा करते हैं। अगर आप इन तीनों चीजों को नहीं जानते तो कभी एक मैच्योर बिलीवर की तरह नहीं जियोगे। If you do not understand these 3 things, you will never live like a mature believer. आप एक बच्चे की तरह जियोगे परमेश्वर के राज्य में। You will live like a child in the kingdom of God. और जो बच्चा होता है वो कभी अधिकार में नहीं जी सकता। And a child can never live in authority. कितने लोग बढ़ना चाहते हैं आत्मिक रीति से? How many people want to grow in their spiritual life? आमेन। ग्रोथ परमेश्वर के हाथ में नहीं है। कई लोग आके बोलते हैं हमारे लिए प्रार्थना कर दो, हम प्रभु में बढ़ना चाहते हैं। ग्रोथ प्रार्थना से ही नहीं आती है। Growth is not in the hands of God. मतलब दूसरे की प्रार्थना से। Some people come and say, pray for me that I would grow. Growth does not come. Growth is not imparted. I cannot impart spiritual growth to you. आत्मिक बढ़ोतरी हाथ रखकर या प्रार्थना करके नहीं दी जा सकती। कोई आता है किसी पास्टर के पास, पास्टर जी मेरा बेटा 2 साल का है, हाथ रख दो कि 8 साल का हो जाए। Does someone come to a pastor and say, my son is 2 years old, lay hand that he would become 8 years old? नहीं, ग्रोथ में आपको परमेश्वर के साथ पर्सनली पार्टनर करना पड़ेगा। No, you need to personally partner with God for your growth. और ये मेरी प्रार्थना है आज, And this is my prayer today. कि जितने गुनगुने मसीह आज आए हैं, धधकती हुई आग बनकर वापस जाएं यीशु के नाम में। That all the lukewarm believers who have come today will go back as a fiery furnace in Jesus. आपको आज एक कमिटमेंट करना होगा। You have to make a आपको एक commitment. चीज ठाननी होगी आज You will have to decide it कि मैं today. ऐसे नहीं जी सकता पूरी जिंदगी। That I cannot live like this all my life. नहीं, No, मुझे बढ़ना है। I have to मैं grow. आपको बता रहा हूँ, एक जीवन प्रभु ने आपको दिया है। I'm telling you, God has given you one life. जो समय बीत गया वो रिवाइंड नहीं हो सकता, आप वापस नहीं पा सकते उस समय को। The time that is past, you cannot rewind it. You cannot bring it back. कई लोग रोते रहते हैं, हाय मैं काश ऐसा करता, काश वैसा करता, और सोचते हुए आज भी क्या करते हैं, आज को भी खराब कर देते हैं पुराना सोचते सोचते। Many people keep wondering, I wish I would have done that, I wish I could have done that, and they waste their today thinking about the past. और जो आज करना चाहिए वो नहीं करते, फिर कल रोएंगे कि आज काश मैं वो कर देता। And what they were supposed to do today, they do not do, so that tomorrow they will cry that I wish I did that yesterday. No more regrets. और कोई पछतावा जो हो नहीं। गया वो हो गया, मगर अब जो मैं जीवन जीऊंगा वो एक यीशु मसीह को महिमा देने वाला जीवन होगा। What is done, but the life that I live now, it will glorify my King Jesus. एक डिसीजन लो आज, एक कमिटमेंट करो, 2025 मेरा बिल्कुल अलग, मैं एक अलग फेज में जाऊंगा, एक सीरियसनेस के साथ परमेश्वर के साथ में चलूंगा। Take this decision today, make this commitment that I will walk seriously with the Lord. आमेन। एक सोल्जर की तरह। Like a soldier. आप जानते हैं एक जो सोल्जर होता है उसके पास हथियार होते हैं। इससे पहले मैं इस पूरे को पढ़ लेता हूं और फिर हम लोग वापस आएंगे। Let me read the whole thing and we'll come back. And also if anyone competes in athletics, he is not crowned until he competes according to the rules. फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता।
कितने लोग मुकुट पाना चाहते हैं इस जगह में? How many of you want a crown in this place? Amen. द हार्ड वर्किंग फार्मर, आप देख रहे हैं पौलुस 3 चीजें बोल रहा है लगातार: सोल्जर, अ गाय हु इज एन एथलीट एंड अ फार्मर। जो किसान परिश्रम करता है। आप देखें पौलुस 3 बातों की बात कर रहे हैं, एक सैनिक की, एक खिलाड़ी या एक कुश्ती लड़ने वाले की, और एक किसान की जो और परिश्रम ये करता है। तीनों चीजें आपके मसीह जीवन के 3 एस्पेक्ट्स की बात करता है। And all these 3 things talk about 3 aspects of your believer's life, your Christian life. Amen. The hard-working farmer must be first to partake of the crops. एक कठिन परिश्रम करने वाला किसान, फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। Consider what I say and may the Lord give you understanding in all things. जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। सबसे पहली चीज ध्यान सुनो। The first thing you hear, आप इस बात को मानो या ना मानो, whether you believe or agree or not, आप एक लड़ाई लड़ने के लिए बुलाए गए हो। you are called to fight a fight, to win. अगर नहीं लड़ोगे, If you will not fight, मुक्के और लात पड़ते रहेंगे। you will keep on getting punches and kicks. या तो लड़ना सीख जाओगे, Either learn to fight या तो जिंदगी भर मार खाते रहोगे। or you will keep on getting क्योंकि beaten जो all your आपका life. दुश्मन है उसमें दया नाम की कोई चीज नहीं है। Because your enemy knows no mercy. कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? How many of you understand? जो सेना में सैनिक होता है वो जानता है दूसरा बंदा कोई मर्सी नहीं दिखाने वाला उसे। A soldier in an army knows that my enemy will show no mercy. शैतान के अंदर कोई दया नहीं है। The devil has no mercy. अगर आप नहीं सीखे लड़ना If you do not learn how to fight, तो वो मारता रहेगा आपको। then he'll keep on hitting you. कि विचारों में मुझे डिप्रेशन है, मुझे सुसाइडल थॉट आ रहे, वो क्या हो रहा है? वो मार रहा है आपको, वो मार रहा है। Oh, I have depression, I have suicidal thoughts. What is it? He's hitting you. बीमारियां, अलग अलग पाप की आदतें, वो क्या हो रहा है? वो Sinful मार रहा है। habits. He is giving you blows after blows. वो आपको मुक्के पे मुक्के मार रहा है। अपने पड़ोसी को बोलो, लड़ना सीखना है हमें। Tell your neighbor we have to learn to fight. सबसे पहली चीज पौलुस तिमोथी को बोलता है, तू एक सोल्जर है, तू एक सैनिक है, और सैनिक का पहली चीज क्या होती है? वो लड़ाई के लिए तैयार किया जाता है। The first thing Paul tells Timothy is you're a soldier and a soldier is prepared for battle. The Bible tells us, God says, I will teach your fingers how to fight. परमेश्वर कहता है मैं तेरी उंगलियों को युद्ध लड़ना सिखाऊंगा। Amen. परमेश्वर, मैं डिक्लेयर करता हूं, परमेश्वर आपकी उंगलियों को युद्ध लड़ना सिखाएगा यीशु के नाम में। I declare that the Lord will teach your fingers to wage war. Amen. So पहली चीज, कई लोग बोलते हैं अजय हम नहीं मानते जी, मत मानो। Some people say, oh, we don't believe this. Don't. बाइबल कहती है हम एक लड़ाई के अंदर हैं। The Bible says we are in the middle of a battle. बाइबल कहती है हमें एक लड़ाई लड़नी है। The Bible says we have to fight a battle. पहला तिमोथी 6:12, 1 Timothy 6:12, fight the good fight of faith. विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। There is no escape from fighting the fight of faith. विश्वास की कुश्ती लड़ने से कोई एस्केप नहीं है, कोई एग्जिट नहीं है। आप जानते हैं, कई लोग इस बात को नहीं जानते, जब आप रेवलेशन पढ़ोगे, व्यभिचारियों से पहले, मूर्ति पूजकों से पहले, टोना तांत्रिक करने से नंबर 1 लोग जो परमेश्वर का वचन कहता है पाप है, वो है डरपोक, नरक की झील में डाल जाएंगे। पहला, डरपोकों की कोई जगह नहीं है परमेश्वर के राज्य में। The book of Revelation tells us that before those who were idolaters, who were fornicators, those who were cowards, they were thrown into the lake of fire. यहाँ पे कोई डरपोक नहीं है। There is no coward here. यहूदा के गोत्र का वो शेर आपके अंदर रहता है। The lion of the tribe of Judah lives inside of you. उसने आपको अपना हथियार दिया है। He has given you his weapon. Amen. ये साल 2025 वो साल होगा जिसमें हम लड़ना सीखेंगे एक नए लेवल में, और गोलायत गिराए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। This year 2025 is the year we will learn to battle in another level, and many Goliaths will be slain this year. Amen. कई मसीह लोग आज भी अपने आप को विक्टिम की तरह देखते हैं, हाय मैं बेचारा हूँ। You are not a victim, you are a soldier of Lord Jesus Christ of Nazareth. Many believers look at themselves like a victim. आप बेचारे नहीं हो, आप प्रभु यीशु मसीह के सैनिक हो। मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? Why does this happen to me? तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए हो गया This happened to you क्योंकि एक दुश्मन है because there is an enemy और उसके पास कोई दया नहीं है। and he knows no mercy.
वो आपके ऊपर दया नहीं करेगा, आपके बच्चों के ऊपर दया नहीं He करेगा। will not show mercy to you or to your children. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? How many of you understand what I'm saying? मैं आपको बता रहा हूँ, इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है। I'm telling you, we have to understand. ये समय है हम क्यूट क्रिश्चियनिटी से बाहर आ जाएं। It's time we come out of cute Christianity. लड़ना सीखना पड़ेगा। We will have to learn to fight. सुन रहे हो मेरी आवाज को? Do you hear me? लड़ना सीखना पड़ेगा। You will have to learn to fight. कोई और ऑप्शन नहीं है, There is no other क्योंकि option. लड़ाई चल रही है। Because there is a battle going on. आप जानते हैं कितने ऐसे देश हैं आज You know, there जहाँ are पे, many- जैसे इजराइल है, क्योंकि वहां पे लड़ाई चलती रहती है, वहां पे ऑप्शन नहीं है, हर किसी को सेना में भर्ती होना पड़ता है। A nation like Israel, there's constant battle happening, so everybody has to be trained and everybody has to join the army. कोई जवान बंदा नहीं बोल सकता नहीं नहीं मेरा मन नहीं है जी लड़ने का, मुझे तो लड़ाई पसंद नहीं है जी। No youth can say, I don't feel like fighting, I don't like to fight. वो कहते हैं इस देश में रहना है और इस देश में लड़ाई हो रही है तो लड़ना सीखना पड़ेगा, आर्मी में सेवा करनी पड़ेगी। They say if you want to live in this nation, you'll have to learn to fight and you'll have to serve in the army. मैंने आपको क्या बताया था? हीलिंग इज अ वॉरफेयर। चंगाई एक लड़ाई है. शैतान छोड़ के नहीं जाएगा आपके शरीर को। The devil will not leave your body. अगर आप लखनऊ हुए तो, If you were अगर आप कहें Lucknowi, हम आपसे कह रहे हैं प्लीज, oh, we are requesting you, please. वो रिक्वेस्ट की भाषा नहीं समझता। He does not understand the language of आपने हिंदी में वो request. कहावत सुनी है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आमीन। शैतान एक ही भाषा समझता है, शैतान सामर्थ की भाषा समझता है। The devil understands only one language, the language of power. मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको एक बात बताता हूँ। परमेश्वर जानता है God कि आप knows. उसके प्रिय पुत्र हो। God knows that you are his beloved son. आपको शैतान को बताना पड़ेगा मैं उसका बेटा हूँ, You have to tell the devil that you are his son. क्योंकि जब यीशु मसीह के सामने शैतान आया तो उसने क्या बोला? इफ यू आर द सन ऑफ गॉड। When the devil came to tempt Jesus, he said, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो. और जब यीशु मसीह ने उसको हरा दिया वचन से, And when Jesus defeated him with the word, उसके बाद जब दुष्ट आत्माएं प्रकट होती थी, एक ने भी नहीं कहा इफ यू आर द सन ऑफ गॉड, उन्होंने कहा यू आर द सन ऑफ गॉड। then whenever demons manifested before Jesus, none of them said, if अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, बल्कि दुष्ट आत्मा कहती थी तू परमेश्वर का पुत्र है. आमीन। दुष्ट आत्माएं कहती थी जीसस वी नो, पॉल वी नो। जब ऐसा जीवन जियोगे नरक भी जानेगा आप कौन हो। The demons used to say, यीशु को हम जानते हैं, पौलुस को हम जानते हैं. When you live a life like that, even the hell knows you. आमीन। फिर से मैं बोलूंगा, लड़ना सीखना पड़ेगा। You will have to learn to fight. आपके अंदर वो वॉयलेंट फेथ को आपको डेवलप करना पड़ेगा। You will- रोना नहीं। कई मसीह क्या करते हैं, आज रोते हैं जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है, हाय हमारे साथ क्यों गया, हाय मैं व्हाट्सएप में स्टेटस डाल देता हूं। नहीं नहीं नहीं, उस समय अपना दरवाजा बंद करो, अपना मुंह खोलो और जो अधिकार परमेश्वर ने दिया है उसका इस्तेमाल करो। You will have to learn to fight. Many people start crying and start posting statuses on social media. No, that is the time you shut your door and start speaking and use the authority that Jesus has given to you. कितने मसीह लोग हैं जो सिंपैथी ढूंढते हैं। Many believers look for sympathy in moments like that. मैं बीमार हुआ, कोई मुझे देखने नहीं आया। Oh, I was sick, nobody came to see me. क्यों? कोई देखने आएगा तो चंगे हो जाओगे। If somebody came to see you, will you become well? सिंपैथी मत ढूंढो, Don't look for sympathy. वचन को ढूंढो, Look for the word. अधिकार में बढ़ो, Grow in authority. एक सैनिक की तरह बढ़ो। Like a soldier, grow. आमीन। बाइबल हमें ये कमांड कर रही है, पौलुस अपने आत्मिक बेटे को बोल रहा है फाइट तिमोथी, तेरे को लड़ना पड़ेगा। The Bible फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ। The Bible commands us. Paul अपने आत्मिक बेटे को बोलता है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़. क्योंकि विश्वास की एक कुश्ती है, क्योंकि शैतान आपका विश्वास चुराना चाहता है। Because there is a fight of faith and the devil wants to steal your faith. प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बोला, शैतान ने तो तेरे के लिए वो मांग दिया है कि जैसे गेहूं को पटकते हैं वैसे तुझे पटके, बट आई हैव प्रेड फॉर यू सो दैट योर फेथ मे नॉट फेल। Jesus told Peter that the devil asked for you that he would swift you like wheat. लेकिन मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया कि तेरा विश्वास निकम्मा ना हो. आमीन। दूसरा कुरिन्थियों 10 उसका 3 से 5 इसमें लिखा है, For the weapons of our warfare are not carnal but mighty in God. क्योंकि हमारे युद्ध के जो हथियार हैं वो शारीरिक नहीं लेकिन परमेश्वर में महान हैं. आपको पता है आपके पास हथियार दिए हैं परमेश्वर ने। Do you know God has given you weapons?
परमेश्वर ने आपको हथियार दिए हैं। God has given you weapons. ये समय है कलीसिया अपने अधिकार को समझ ले। This is the time that the church understands their authority. आमेन। एक आर्मी जीत नहीं सकती अगर हर एक सैनिक अपना काम ना करे। An army cannot win unless every soldier does what they're supposed to do. आप सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Each one of you has a responsibility. देखिए 1 पीटर 5:8-9, अब इसको हिंदी में पढ़ते हैं। 1 पीटर 5:8-9, पहला पत्रस 5 उसका 8। देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा है, सचेत रहो और जागते रहो। आप जानते हैं विजिलेंट कौन लोग होते हैं? जो बॉर्डर पे होते हैं लोग, वो सोते नहीं हैं, वो सचेत रहते हैं, वो जागते हैं, क्योंकि कभी भी जो दुश्मन है वो अटैक कर सकता है। The people who are at the border, they do not sleep. They are aware, they are awake because the enemy can attack any moment. इसका मतलब हम एक ऐसा जीवन जिए where we are vigilant. That means we live a life जहां पर हम सचेत रहते हैं। Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion. सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले शेर के समान खोजता Seeking रहता है। whom he may devour. खोजता रहता है किसको फाड़ खाए। वो ढूंढ रहा है। He is looking. मैंने आपको क्या बोला? शैतान के पास कोई दया नहीं है, वो दया नहीं दिखाने वाला। I told you the devil will not show mercy. जितने मेल हैं यहाँ पे, जितने मर्द हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अपने परिवार के लिए आपको घुटनों पे आना पड़ेगा। I'm telling all the males here, you'll have to come on your knees for your अपने family. बच्चों के लिए आपको उठना पड़ेगा। You will have to wake up for your children. Amen. शैतान ढूंढ रहे हैं। The devil is looking. आप एक सोल्जर हो, You are a soldier. आत्मिक जहां में आप एक सोल्जर हो। You are a soldier in this. और अगर आप फेथफुली परमेश्वर के साथ बढ़ते रहोगे तो जैसे एक सैनिक का प्रमोशन होता है, आत्मिक रीति में रैंक्स इंक्रीज। And if you keep walking with the Lord faithfully, in the spirit world, your rank will increase. आपका rank बढ़ता जाएगा। आप बढ़ते जाओगे। will परमेश्वर के राज्य में वो कैसे वफादारी को कैसे नापता है? थोड़ा सा देके आपको। How does he test faithfulness? By giving you little. क्योंकि बाइबल कहती है he who is faithful in little is faithful in much। बाइबल कहती है जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो ज्यादा में भी विश्वास। प्रॉब्लम ये है हमें थोड़ा नहीं चाहिए, The problem is we don't want little. हमें ज्यादा चाहिए, We want more. मगर ज्यादा ऐसे नहीं आता। But more does not come like that. पहले हमें फेथफुलनेस, वफादारी दिखानी होती है थोड़े में। We have to be faithful in the little first. मैंने आपको बताया, जो लोग यहाँ नए हैं नहीं जानते, मेरी पहली सेवकाई पता क्या थी? मेरे पास्टर ने मुझे सबसे पहले क्या दिया था? एक पोछे की बाल्टी और पोछे का कपड़ा। The people who are new here would not know, but my first ministry was a bucket and a mop. बेस्ट मिनिस्ट्री थी वो, मैं आपको बता रहा That हूँ, was the क्योंकि best उसमें ministry. परमेश्वर ने मुझे तैयार किया। Because in that the Lord prepared me. असली सेवकाई ये नहीं है। कई लोग सोचते हैं ये माइक पकड़ के ये लाइट, ये थोड़ा ना है सेवकाई। अरे असली सेवकाई तो वो लड़ाइयाँ हैं जो आप पर्दे के पीछे लड़ते हो, जिसको कोई नहीं देखता, परमेश्वर देखता है उसको। True ministry is not on the mic in front of the lights, but it is what nobody sees behind the curtains when nobody looks at you. अगर यहाँ कोई खड़ा है माइक लेकर और उसका आत्मिक जीवन सही नहीं है पीछे, he cannot stand for long. If there's anyone who's standing with the mic in front of the lights and their spiritual life is not right before the Lord, they will not, वो ज़्यादा समय टिक नहीं पाएंगे। Amen. मैं चाहता हूँ आज हम सब एक कमिटमेंट को लें। मैं बहुत लंबा नहीं बोलना चाहता आज, क्योंकि बहुत कुछ है इवेंट्स। हाँ, I want each बच्चों ने one of you, बहुत मेहनत करी आपके लिए। I want each one of us to take that commitment today. बट मैं चाहता हूँ आज इस नए साल में जब आप प्रवेश कर रहे हो तो आप ऐसे नहीं कि मेरा साल जैसे मर्जी वैसा बीत गया। नहीं नहीं, आप दिशा दोगे अपने साल को। आपका साल आपको नहीं बताएगा कैसा होगा, आप अपने साल को बताओगे मेरा साल कैसा होगा। I want you to set the direction for your year. Your year will not tell you where you will go, but you will tell this year where it will go. आमीन। और ये केवल मुंह से बोलने मेरा साल बेस्ट होगा,
हाँ वो ठीक है, होगा, मगर उसके साथ आपको मैंने क्या कहा, भागीदारी करनी है। ये नहीं मैं बिग बॉस देख के चिप्स खाऊंगा और मेरा साल बेस्ट होगा। You will have to partner to make this year the best. आपको भागीदारी करनी पड़ेगी परमेश्वर You के will साथ। have to partner with the Lord. आपको अपने आप को अकेले में परमेश्वर के साथ समय देना पड़ेगा। You will have to give yourself time alone with the Lord. Amen. Resist him steadfast in the faith. विश्वास में डट कर उसका सामना करो। किसका सामना करो? शैतान का विश्वास में क्या करो? डट कर सामना करो। भागना नहीं है, हमें डट कर सामना करना है। We have to resist him steadfast in faith. We don't have to run away. We have to face him. Amen. एक सैनिक क्या है? कड़ी ट्रेनिंग से होकर गुजरता है, A soldier takes intense training, वॉरफेयर करना सीखता है। learns to battle. जब आप परमेश्वर के राज्य में बढ़ते हो When you grow in the kingdom of God, तो परमेश्वर आपको सिखाता है। the Lord teaches you. Amen. मैं बता रहा हूं, शैतान आपको समय से पहले नहीं ले जा सकता जब आप इस अधिकार में चलोगे। I'm telling you, the devil cannot take you before your time if you walk in authority. शैतान आपके शरीर में कुछ नहीं डाल सकता जब आप अपने अधिकार में खड़े हो। Devil cannot put anything in your body when you stand in authority. पर हमें लड़ना सीखना पड़ेगा। But we have to learn to fight. Amen. कितने लोग तैयार हैं? How many of you are ready? बोलो, पवित्र आत्मा मुझे लड़ना सिखा। Say, Holy Spirit, teach me to fight. दूसरी बात, जो एक सोल्जर है, एक सोल्जर अधिकार को समझता है। A soldier understands authority. बहुत कम मसीह हैं जो आज अधिकार को समझते हैं। Very less believers understand authority today. मत्ती 8, 9 और 10 में हम देखते हैं, For I am also a man under authority, having soldiers under me. Matthew 8, 9. For I am also a man under authority. नहीं, ये मैंने इंग्लिश में बोला है। क्योंकि मैं अधिकार के अधीन एक व्यक्ति हूँ। मैं एक पराधीन, मैं अधिकार के नीचे हूं और मेरे नीचे सैनिक है। That's how authority works. अधिकार इस रीति से काम करता है। ध्यान से सुनो, अगर आप कहते हो मेरे ऊपर कोई नहीं है तो अधिकार काम नहीं करेगा आपके जीवन में। लिख के ले लो, उन मसीहों का जीवन मुझे दिखा दो जो किसी को समर्पित नहीं है, चर्च नहीं जाते, उनके ऊपर कोई आत्मिक अगुवा नहीं है, वो केवल YouTube से ज्ञान दे सकते हैं, उनके जीवन में कोई फल नहीं है। If you say there is no one above me, there is no authority above me, those believers who do not go to church, do not submit to anyone, they only have knowledge to give from YouTube videos, but they have no authority in their क्या life. बोला इसने? इसने बोला मैं अधिकार के अधीन हूं और मेरे नीचे भी सिपाही हैं। He said, for I am a man under authority and there are soldiers under me. और आगे बाइबल कहती है, ये देखो क्या कह रहा है, जब मैं एक से कहता हूं जा तो वो जाता है, और जब दूसरे कहता हूं आ तो वो आता है। And he says, I said to this one, go, and he goes, and to another, come, and he comes. अधिकार ऐसे काम करता है, This is how authority works. क्योंकि ये व्यक्ति अधिकार के अधीन है, इसीलिए जो वचन ये बोलता है उसमें सामर्थ है। Because this man is under authority, so the word he speaks has authority, has अब ध्यान power. से सुनो, इसने कोई भजन नहीं गाया, He has not sung any songs, इसने कोई उपवास नहीं करा, not fasted, इसने कोई प्रार्थना नहीं करी, not prayed. मगर इसका दूसरा वर्स 10 लगाओ। प्रभु यीशु मसीह अब कहता है, प्रभु यीशु मसीह हैरान हो जाता है कि ऐसा विश्वास तो मैंने कहीं नहीं देखा। But Jesus is shocked. He has never seen such faith anywhere. ये सुनकर यीशु को अचंबा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। When Jesus heard it, he marveled and said, assuredly I said to you, I have not found such great faith, not even in Israel. आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप लोग जो आ रखे हो यहाँ पे, I ask you a question today. Who is your life submitted to? आपका जीवन किसको समर्पित है? क्या कोई है अगुवा जो आपको डांट लगा सके जब आप गलत जाते हो? Is there any elder who can rebuke you when you Or you are a do not wild get right? bird, wherever I want to go, I want to go. या आप एक जंगली परिंदे की तरह जहां जाना चाहें जा सकते हैं। There are no lone rangers in the kingdom. परमेश्वर के राज्य में कोई भी अकेला नहीं जी सकता। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? I am a man
under authority. मैं अधिकार के अधीन एक व्यक्ति हूँ, And that's how I walk in authority. और इसी तरीके से मैं अधिकार में चलता हूँ, Because I am a man under authority. क्योंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो अधिकार के अधीन अगर है। आप अधिकार की अधीनता में चलते हो, सेम अधिकार जो आपके अगुवे के ऊपर काम करता है, सेम अधिकार आपके द्वारा भी कार्य करेगा। If you are a man who walks under authority, then the same authority that is upon your superior will work in your life and through your life. क्योंकि वो अधिकार उस व्यक्ति का नहीं है, वो डेलीगेटेड अथॉरिटी है जो यीशु मसीह ने डेलीगेट करी है। Because that authority does not belong to any person, it is the delegated authority that Jesus has given. Amen? अब हम आते हैं एथलीट के ऊपर। अभी हमने बात करी थी सोल्जर की, अब बात करते हैं एथलीट की, एक खिलाड़ी की। Now we'll talk about an athlete. पहला कुरिन्थियों 1 Corinthians 9:24-27, I'll read from NLT. Don't you realize that in a race everyone runs, but only one person gets the prize? क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो सब दौड़ते हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है? So run to win. तो वैसे ही जीतने के लिए दौड़ो। Come on, tell your neighbor, run to win. अपने पड़ोसी का कहो जीतने के लिए दौड़ो। Amen? Amen. हमारी एक दौड़ है जिसको हम दौड़ रहे हैं। There is a race that we are running. Amen? All athletes are disciplined in their training. सारे खिलाड़ी अपने अपने प्रशिक्षण में अनुशासित होते हैं। This is something that Christians don't like. और ये एक ऐसी चीज है जो मसीहों को पसंद नहीं आती। They think discipline is motivational. उनको लगता है अनुशासन तो मोटिवेशनल है। नहीं नहीं नहीं, एक अगर आपने ओलंपिक मेडल पाए हुए, गोल्ड मेडल पाए हुए खिलाड़ी को देखा हो, या अगर आपने किसी ऐसे खिलाड़ी को देखा है जो बेस्ट है, सबसे पहले आप जानोगे कि वो अकाउंटेबल है और वो एक डिसिप्लिन लाइफ जीता है। If you see an Olympic gold medalist or an athlete who is excellent, you will see they live a disciplined life. आप एक एथलीट की तरह बुलाए गए हो You are called like an athlete एक डिसिप्लिन लाइफ जीने के लिए, to live a disciplined life. नॉट एन अनडिसिप्लिन लाइफ। एक बिना अनुशासन का जीवन नहीं। Amen? They do it to win a prize that will fade away, but we do it for an eternal prize. वो तो एक ऐसा मुकुट पाने के लिए जीते हैं जो विनाश हो जाता है, लेकिन हम एक ऐसे मुकुट के लिए जी रहे हैं जो अविनाशी है। चाहे कितना भी बड़ा ओलंपिक मेडल पाया हुआ व्यक्ति हो, उनका जो ताज है, उनके जो मेडल है वो नाश हो जाएंगे। No matter how great that medal is, that medal will not last long. मगर जो बाइबल बता रही है, जो मेडल आपको मिलेगा, जो क्राउन, जो ताज आपको मिलेगा, वो अविनाशी है। But the Bible says the crown, the medal that you will receive is forever. It's indestructible. एक ओलंपिक स्विमर है माइकल फेल्प्स, There is an Olympic swimmer, Michael Phelps. और मैंने एक बार उनका इंटरव्यू देखा, एंड इट रियली ब्लेस्ड मी। I saw one of his interviews और उसने मुझे बहुत आशीष दी। उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया 5 साल पहले ओलंपिक के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बोला सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल अगले ओलंपिक में मैं जीतूंगा। In that interview he told 5 years before the Olympics he held a press conference and said I will win the maximum number of gold medals in next Olympic. और सारे मीडिया में उनका मजाक उड़ने लगा And the entire media mocked कि him. देखो कितना घमंडी है ये व्यक्ति, See how proud ये this कह man रहा is. है मैं सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतूंगा। He says I will win the maximum number of तो gold medals. केवल बोला नहीं उसने, He didn't just say it. उसके बाद After that, हर रोज 5 घंटे वो पानी में स्विमिंग कर रहा होता था, हर रोज every day he was swimming in the water for 5 hours. 5 घंटे। 5 hours. जब बुखार था, Even when जब he had बीमार fever था, तब and भी sick, even then वो when he कह रहा है was मैंने एक भी दिन ऑफ नहीं लिया। sick, he says I did not take off on a single day. आप जानते हैं इस मसीह जीवन में कोई ऑफ नहीं है। Do you know there is no off days in this Christian life? आप ये नहीं कह सकते मैं वेकेशन में हूँ गोवा में, सो आज मैं मसीह नहीं हूँ, मैं गैर मसीह की तरह जीऊंगा। You can't say I'm on a vacation in Goa so I'll not live like a believer today, I'll live like an unbeliever. हाँ, हो सकता है कोई आपको वहां नहीं देख रहा, मगर आत्मिक जहां में सब देख रहे हैं आप। And maybe no one is looking at you there physically, but the spirit world is looking at you. और वो जो व्यक्ति है माइकल फेल्प्स, And this man Michael Phelps, टुडे ही इज द मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन। सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल उसने जीते जैसे उसने कहा था, क्योंकि उसने अपने आप को डिसिप्लिन किया, अनुशासित किया ट्रेनिंग के लिए। he won the maximum number of gold medals just as he had said because he disciplined himself in swimming.
आज मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, I want to tell you मैं something. ये नहीं कह रहा आपको पानी में तैरने की जरूरत है 5 घंटे। I'm not saying you have to swim in the water. हम लोग जो एथलीट हैं, हमारे कुछ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है, We who are athletes, we have some spiritual disciplines. क्योंकि हम एक आत्मिक सेना में हैं। Because we are in a spiritual army. एक हमें डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। हर रोज हम प्रार्थना में बढ़ेंगे, हम प्रार्थना में समय बिताएंगे, हम वचन में समय बिताएंगे। We have to develop a discipline. We will spend time in prayer, spend time in the word every day. आप जानते हैं इसीलिए कई मसीह लोगों को दे डोंट लाइक दिस, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें मरना पड़ता है, उनको शॉर्टकट चाहिए। This is what many believers don't like. You have to die to yourself in this. They want a shortcut. कई क्रिश्चियन ऐसे हैं, वो व्हाट्सएप में जाके 10,000 लोगों को प्रेयर रिक्वेस्ट कर देंगे, मगर खुद घुटने में आके नहीं प्रार्थना करेंगे। There are many believers who would go to WhatsApp and message many people, but they will not come on their knees and pray for a moment. आपकी लड़ाई आपका पास्टर भी नहीं लड़ सकता, आपकी लड़ाई आपको स्वयं लड़नी पड़ेगी। Even your pastor cannot fight your battle. You'll have to fight your battle on your own. आमेन। आपके अगुवे आपको सिखा सकते हैं लड़ना कैसा है, लड़ना आपको पड़ेगा। Your elders can teach you how to fight. अपने but बच्चों you'll have के to लिए, fight. अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए For your- आपको लड़ना सीखना पड़ेगा। For your children, for your husband, for your family, you will have to learn to fight. आमेन। Amen. मैंने आपको 3 डिसिप्लिन बताए थे, I told you 3 disciplines, अगर आपको याद है तो। if you remember. क्या क्या है? प्रार्थना, प्रेयर, फास्टिंग। हम लोग 3 तारीख से 21 दिन फास्टिंग में जा रहे हैं। We are going into a 21 days fast from the 3rd of January. अगर आप फास्टिंग नहीं कर सकते, If you- अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तो एक अलग बात है, If you वरना आप अनुग्रह मांगो कि आप एक कलीसिया की तरह हम मिलकर साथ में फास्टिंग करेंगे। If you cannot fast because of medical reasons, it's a different thing, but you ask for grace that we fast together as a church. कई मसीह लोग प्रार्थना इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो बॉडी कॉन्शियस है, उनका शरीर उनके ऊपर प्रभाव डालता है। मगर जब आप फास्टिंग करते हैं, आपका क्या होता है, यू स्टार्ट टू टेक ओवर योर बॉडी, आप शरीर के ऊपर प्रभुता करने लग जाते हैं। Many believers cannot pray because they are body conscious, but when you fast, you start to take authority over your body.